So we are just recapping how the different material elements are functioning. So like mind, intelligence, ego, and chitta. These are the four elements. They have their particular job. But if we come to the spiritual realization, one point I want to add here. So Dadami Buddhi Yoga, in this sloka commentary, Vishwanath Chakravarti says, so you will be experiencing the Lord, but how this experience is happening is also not known by the that. That means what is the mechanism, the spiritual mechanism. That means like in the material objects, if you are perceiving, that we can easily understand. So that I am going to explain. But the spiritually you are perceiving when Lord is standing directly, is coming and standing in your heart, which is completely purified. So that is being so that means Lord is being experienced there. That mechanism is you cannot simply cannot compare with this material mechanism, and you cannot say like that. You said that we cannot know that how it is happening. So like we should not simply say that there is this material mind, material intelligence, material ego became spiritual mind, spiritual intelligence, spiritual ego, spiritual chitta. So that process, how it is happening, it is not, it cannot be known by the even the experiencer. That means whoever is experienced, he also doesn't know that. But we say all these things are transcendentalized. But the analysis of the elements of those is not anywhere, it is not described. But we say everything is transcendentalized. So anyway, that point I want to add here. Then let me continue my just discussion. Mind is what? Manasaha sankalpaha samanyataha vishaya jigruksha. सामान्य विषयस्यैव विविध संकल्पेन विशेषतः जिगृक्षा विकल्पः. What is the property of the mind? Sankalpa and vikalpa. These are the actions of the mind. Which commentary is this? This is third canto, 26th chapter, 27 and 28, like that. Mind is doing what? Is doing the sankalpa. Sankalpa means, so Vishaya Jigruksha, desire to accept the objects in general way. That is known as sankalpa. The general, in generally, or in a general way, accepting, the desire to accept the objects is known as sankalpa. What is the vikalpa? So accepting those objects which are general, which are specifically desiring some objects among those. General, so in general way, if you are desiring the sense objects, then that is known as sankalpa. Vikalpa means visheshena sankalpa. It means specifically you are desiring some objects, then that is known as vikalpa. He is vikalpa is rejecting also, we say. Yeah, that can be also. Vikalpa means you can take two ways of meaning. Alternative also. Yeah. Desiring, what you can say, desiring means desiring not to have or desiring to have. Both you can take. That's why. So vikalpa is going to specially desiring. Like that also you can take. Vikalpa means specially not desiring. You are getting four then. If you make sankalpa vikalpa means accepting, rejecting, then you are going to get only two. But if you take the Vishwanath commentary, you are going to get four options. So sankalpa means general desire. So and you can take general desiring and generally so not desiring also you can take. And similarly, vikalpa means specific desire and specifically not desiring also you can take. Then you are getting the four options, four ways you can interpret this. So that's why you can take. Anyway, that's clear for everyone. Sankalpa and vikalpa, these are the actions of mind. Huh?
या vikalpa means visheshana, that means specifically. So next, what is the role of the chitta? Dravya spurana rupam vijnanam iti chitta vyavrityardham chetana rupam vijnanam tu chitta dharma gneya. हाँ अच्छा अच्छा, संकल्प माने ये होता है चाहना, साधारण रूप से चाहना संकल्प, विशेष रूप से चाहना, कोई विषय वस्तु को विशेष रूप से चाहना विकल्प होता है। हाँ, विशेष रूप से चाहना किसी वस्तु को, विषय वस्तु को विशेष रूप से चाहना विकल्प बोलते हैं, और साधारण रूप से चाहना इसी को बोलते हैं संकल्प। संकल्प के दो प्रकार हैं, एक जनरल संकल्प में माने मैं और भी ऐड अर्थ और एक अर्थ ऐड कर दिया, तो संकल्प माने तो साधारण रूप से कोई वस्तु को चाहना और साधारण रूप से नहीं चाहना, ऐसा ही एक वस्तु को विशेष रूप से चाहना और विशेष रूप से नहीं चाहना। हाँ यस। तो और चित्त का अर्थ क्या होता है कि तो द्रव्य स्फुरणम, सो द्रव्य स्फुरणम विज्ञानम इति चित्त व्यावृत्त्यर्थम चेतना रूप विज्ञान तो चित्त धर्म। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चित्त? सो awareness is simply awareness. For example, if you go to a shopping mall, in front of you there are so many objects, and your eyes might be seeing this so many, but if you come and ask to you after coming to from a shop, if some you and your friend both went, and you also saw that items there, your eyes, and your friend also saw, and your friend is saying on that corner that item is not, that is so good, but you said that I also saw but I didn't see that, I also saw that place but I didn't see that item particularly. Your friend might be saying this, your friend is saying, you might be saying he didn't see but he's saying he saw at the time. So what is happening? The awareness is not gone there, and that's why you didn't see but he saw. This awareness is the property of chitta actually. This is a property of chitta. If chitta doesn't go, even eyes may be coming in contact with that object, but that spuranam will not happen. Dravya spuranam will not happen. That means dravya spurana rupam. That means spuranam, you know, all of you know spuranam. Dravya spuranam, that means that object cannot be recognized. So, यद्यपि चित्त अहंकार मनस्यापि इंद्रिय अनुग्राहकाणि तदपि बुद्धिया तद अनुग्रह विशेष ज्ञेय। तो बुद्धि क्या करती है? तो बुद्धि डिसाइड करती है। अभी आंखों कोई वस्तु को पहले चित्त प्रवेश करना चाहिए, चित्त की प्रवेश हो गया उस वस्तु के ऊपर, उसके बाद क्या होता है, आंखों उस पदार्थ को टच करते हैं, माने आंख उस पदार्थ को माने कांटेक्ट होगा, आई कांटेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से। पहले क्या हो, चित्त का प्रसार हो गया, दैट मीन्स अवेयरनेस है अभी आपको, और अवेयरनेस है, उसके बाद क्या हो रहे हैं, अभी आंखों उस वस्तु को स्पर्श कर रहे, माने आई कांटेक्ट हो रहे उस ऑब्जेक्ट से। होने के बाद क्या हुआ, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो पहले माइंड को दिया जाता है, पहले आंख को ग्रास्प करती है, ग्रास्प करके वो माइंड को देती है, उस वस्तु की संबंधित जो भी ज्ञान है वो माइंड के पास आ गया। वो माइंड के पास आने के बाद क्या होता है, बुद्धि क्या करेगी, हाँ बुद्धि उसको डिसाइड करती है, ये फलाना है करके, ये पेन है नहीं पेंसिल है, ऐसा करके फलाना है करके। तो उसके बाद अहंकार क्या करती है,
ये फलाना वस्तु मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे, ये भाव आएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद ये मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, आई लाइक इट, आई आ रहा है ना, वो कहां से आ रहा है? वो अहंकार के कारण आता है। माने अभिमान आते हैं, उस वस्तु के प्रति अभिमान आते हैं, माने ये मुझे पसंद है, मुझे मुझे आता है एक्चुअली। लेकिन माइंड का काम है, तो उन सभी का माइंड, जिगृक्षा, मानस शब्दे जिगृक्षा अहंकारेण स्वाभिमान अर्पणम इति भेदः। बुद्धिया शब्दो अयम इति स्फूर्ति ही, मनसा शब्दे जिगृक्षा अहंकारेण तत्र स्वाभिमान अर्पणम। माइंड तो चाहती है, नहीं तो नहीं चाहती है, उसके बाद चाहने के बाद उसके बाद मैं चाहता हूं, तो मैं जो भी है, वो अभिमान जो भी है, वो अहंकार के कारण ही है। तो चाहना और नहीं रिजेक्ट करना वो माइंड का काम है। लेकिन अभी मैं स्वाभिमान चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं, ये मैं आना चाहिए ना, तो ये आने के लिए माइंड के साथ साथ और कौन फंक्शन करेगा, वो कौन काम करेगा? अहंकार काम करेगा। ये अहंकार काम नहीं करेगा तो केवल मन है, मन के साथ मैं ही चाहता हूं, ये फीलिंग आना चाहिए ना, तो इसलिए मैं कहां से आएगा? वो अहंकार से आती है, स्वाभिमान। वो ये मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, इट इज डिसाइडेड बाय इंटेलिजेंस और द माइंड। माइंड, माइंड, हाँ, माने वो जिगृक्षा, माने चाहना का काम है माइंड का, वो फलाना है करके डिसाइड करने के काम है इंटेलिजेंस का। और चित्त का काम है जनरल अवेयरनेस उधर स्प्रेड करके अवेयरनेस रहना। और अहंकार का काम है अभिमान करना, तो खुद का मेरे, मुझे मुझे पसंद है। हाँ, चेतना रूपम, चेतना रूपम विज्ञान है, ये इसका क्या अर्थ है? तो ये अवेयरनेस चेतना रूप में प्रसारित होती है, मानी वो जो आत्मा का चेतना वो नहीं, नहीं, ये आत्मा, आत्मा का चेतना वो वो रहने के कारण ही ये सभी काम करते हैं, ये सब वो बैक एंड में सपोर्ट रहती है उसका। यदि वो आत्मा की चेतना ही नहीं रहेगा तो ये सभी कोई काम नहीं करते, ये सब डेड है। तो इसीलिए वो इन सबकी पीछे वो तो रहती है उसका चेतना। लेकिन स्पेसिफिकली ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका सो अवेयरनेस जाना, ये चित्त का काम है। चेतना कहाँ आएगी इसमें? हाँ, दुष्चेतना कहाँ आएगी? तब तो अभी आत्मा, ये अहंकार के कारण अभी क्या समझ रहे हैं? तो शरीर माने ये जो सब कुछ, ये जो चित्त है और ये अहंकार है, मन है, बुद्धि है, यही खुद को समझ रहे हैं। ये अहंकार से ही आता है। ये सोचता है कि सारा मेरा है। हाँ, मैं अहंकार सोच रहा है कि इसका माइंड और बुद्धि मेरा है। हाँ, ये सभी मेरा है करके वो आत्मा सोच रहे हैं। चलिए, आत्मा अभी ऐसा फील करने के कारण क्या है? ये अहंकार। चेतना किसको कहते हैं? इसी को दूषित है ना। दूषित माने अभी ये आत्मा के ऊपर अविद्या की कवरिंग रहेगा ना, तब क्या हो गया? आत्मा मैं कौन हूं भूल गया अभी। मैं तो आत्मा होकर के वो तो जान नहीं पा रहे। अब उसको उल्टा ऊपर ये अहंकार भी कवर किया, तो इसीलिए अभी ये आत्मा क्या सोच रहे हैं? ये सब कुछ, ये जो भी है मन बुद्धि अहंकार, ये सभी खुद है करके सोचने लगे। जैसे मिथ्या अहंकार भी इसी को कहते हैं कि वो सब कुछ मैं मान लेता हूं। दूषित चेतना माने कुछ नहीं, जो जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा को यदि अविद्या कवर किया, उसी को दूषित बोलते हैं। मैंने अपने आप को भूल जाना ही दूषित है। चेतना तो दूसरे सेंस में चेतना की है तो वो दे रहा है, हाँ, एनर्जी दे रहा है। यस, वही आत्मा। हाँ, ये तो आत्मा की वो जो जो चेतना है, इसी के कारण ये सभी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। वो नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा? जब दूसरी चेतना वर्ड यूज किया जाता है तो उसका डिफरेंट मीनिंग। दूषित चेतना माने जब आत्मा अपने आप को भूल गया, अभी अपने आप को भूल कर, अविद्या से कवर होने के कारण अपने आप को भूल गया, भूल के अभी ऊपर से माया से एक अविद्या, एक अहंकार बना के दिया गया, और उसी को अभी ये क्या सोच रहे हैं? उसी की धारा, उसकी द्वारा क्या समझ रहे हैं? ये शरीर अतः मन बुद्धि ही खुद है करके समझने लगे, इसी को दूषित बोलते हैं।
माने जब तक शुद्ध जीवात्मा के ऊपर अविद्या रहेगा तब तक वो गलत समझते, इसी को दूषित बोलते हैं। और जब अविद्या हट गया, उसको विद्या कवर कर दिया, माने सत्वगुण की वृद्धि होकर, और अविद्या माने तो रजोतमो गुणों से बनता है, विद्या माने सत्वगुण से बनता है। तो जब विद्या से बन गए तब आत्मा जाने कि मैं आत्मा हूँ। शुद्ध चित्त। हाँ, तब तो वो उसमें उसमें वो जो अहंकार के द्वारा, माया से द्वारा कल्पित किया अहंकार के द्वारा, वो अपने आप को शरीर है करके आइडेंटिफाई करना बंद कर देगी। लेकिन सत्वगुण में आना भी ट्रांसेंडेंटल स्टेट नहीं। नहीं नहीं, वो ट्रांसडेंटल नहीं। वो सत्वगुण में आना माने वो आत्मा हूं करके जानना। लेकिन ये निष्काम कर्म योगी की केस में, लेकिन वो भी ट्रांसेंडेंटल स्टेट नहीं है। तो माने वो आत्मा अपने आप को जान रहे, लेकिन उसको विद्या को भी हटा देंगे तब जाकर शुद्ध जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो सकता है। उसको भी हटा देना है। जब तक भौतिक जगत में रहेगा तब तक तो विद्या हटेगी नहीं। बिना विद्या के तो वो चीजें एक्ट ही नहीं हो पाएगी। मतलब इस आत्मा जब तक इस जगत में है, विद्या की कवरिंग तो होगी। हम्म। तो विद्या की कवरिंग होगी, विद्या को भी हटा सकते हैं योग के द्वारा। इधर ज्ञान योग नहीं थे तो अष्टांग योग के द्वारा, तो विद्या को भी हटा के वो खुद ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और उसके बाद शरीर छोड़ते, हटाना माने उसका उसका एकदम प्रभाव नहीं रहेगा। तो वो ब्रह्म में जब लीन हो जाते हैं तब माने उसी को ब्रह्म समाधि बोलते हैं, समाधि की टेक्निक द्वारा। तब तो क्या होता है वो, तो मैं ब्रह्म हो करके रियलाइज करते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या करना है, अल्टीमेट की शरीर से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन होने के लिए विद्या को भी हटा के जाना पड़ेगा। विद्या को भी हटा के जाएंगे तभी जब शुद्ध जीवात्मा, क्योंकि विद्या तो सत्वगुण से बना है ना, वो नहीं जा सकती है आत्मा के साथ ब्रह्म में लीन होने के लिए। जीवन मुक्त जो होगा उसमें भी विद्या की कवरिंग है। जीवन मुक्त है जो, उसकी केस में विद्या समाधि में और कुछ नहीं रहेगा। समाधि में कुछ नहीं होगा, लेकिन समाधि से बाहर आते ही हाँ, विद्या की प्रभाव रहेगा, लेकिन समाधि में वो सब कुछ ही विसर्जन करके वो मैं ब्रह्म हूं करके रिलीज किए। ब्रह्म विलीन तो नहीं हुआ है, यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ है। वो जब चाहे तब छोड़ सकते शरीर। समाधि मतलब शब्द पद्धति और हो गया वो समाधि है। हाँ, नो नो, वो अलग। योगी की बात। वो तो भक्त का केस में सर्वधर्म परित्यज्य माने वो भक्ति बिगिनिंग होता है उधर से, शुद्ध भक्ति। सब कुछ छोड़ के मैं भक्ति करूंगा करके कमिट करना ही शुद्ध भक्ति है। वही साधना भक्ति बिगिन होता है उधर से। भक्त के लिए वो नहीं। भक्त भक्त जब जीवन मुक्त हो जाता है कि उसकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज होगी, ट्रांसिट होगी, इसका क्या मतलब है? उसको एक्चुअली देखिए प्रभु, जब आपको ददामी बुद्धि योग माने जब भगवान का रियलाइज किए हैं, और उसका डिटेल्स ऐसा है एकदम जैसे मेटीरियल मैकेनिज्म, मेटीरियल एलिमेंट्स के मैकेनिज्म जैसे वैसा कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो कैसा भगवान का अनुभव होता है ये भी हम लोगों को जानकारी नहीं दिया गया कहीं, ऐसा ऐसे एनालाइज करके। अभी भक्ति के केस में ऐसा वृत्तियां बनता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं। ऐसा बोला जाता है कि सब कुछ ट्रांसडेंटल होता है, और उसमें उस हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, और दिव्य देह माने भावमय देह भी दिया जाता है। लेकिन उसका मैकेनिज्म्स वो सभी ट्रांसडेंटल बॉडी का, उसमें रहने वाले एलिमेंट्स का, और वो मैकेनिज्म वो कुछ नहीं, ये तो सभी तीनों गुणों से बनता है। ये सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण से बना है, महत सत्वगुण से, रज तमोगुण अंत अहंकार तमोगुण से, इस प्रकार तामसिक अहंकार से, ये रासिक अहंकार से इंद्रिय आता है, पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आता है, और सात्विक अहंकार से मन आता है। ऐसा एनालिसिस ये मेटीरियल माइंड इंटेलिजेंस और ईगो इन सब के लिए है। ऐसा आध्यात्मिक माइंड इंटेलिजेंस इसके लिए कोई एनालिसिस कहीं पुस्तक में लिखा नहीं है। लेकिन ये होता है, बोला जाता है बस। वो कैसा होता है, वो स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है सब। यस प्रोजेक्ट। जैसे भी जो क्रिएशन होता है एवरीडे, हाँ, और महातत्व से जो महातत्व में रजोगुण और सत्वगुण प्रधान है, या फिर अहंकार, हाँ, तमोगुण प्रधान है। यही अहंकार बनता है नया। हाँ, माने डेली नहीं, ये तो 23 एलिमेंट से। यही भी ब्रह्मा जी के हर दिन में स्टार्टिंग में अहंकार जब क्रिएशन होता नहीं नहीं, उस समय नहीं बनता है। एक बार बनता है, ब्रह्मा जी भगवान सर्ग करेंगे उस समय बनता है, और उसी को इंग्रेडिएंट्स को यूज करके ये सबको देते हैं है, कर्म के। क्रिया कार्य हम्म।
सारी सृष्टि में हाँ, कारण सृष्टि में सरगमी हो जाते हैं सब, एक बार हो जाता है सभी को, वो विराट का प्रकट हो जाता है, उधर से ही सबको अलर्ट करते हैं ब्रह्मा जी अपना कर्म के अनुसार। ये वो अहंकार यही है इनका। यही है उनका। और इसका मात्रा माने जीव के कर्म के अनुसार ज्यादा कम होता रहता है, इसकी मात्रा जीव की कर्म के अनुसार। सो कितना मन देना चाहिए, कितना, जैसा भी, जैसा इंटेलिजेंस कितना देना है, जैसे कुत्ते की योनि है, इंटेलिजेंस बहुत कम रखते हैं, और सेंसस भी 4 देना है, 5 देना है, 3 देना है, 2 देना है, 1 देना है, कर्म के अनुसार डिपेंडेंट होते हाँ जी। हैं। ये सब ब्रह्मा जी करते ब्रह्मा जी अविद्या की जो सृष्टि करते हैं, ऐसा आता है पहली सृष्टि में उन्होंने विद्या की। हैं। हाँ, विद्या विद्या दोनों, माने वो सत्वगुण से विद्या, रजोगुण से तमोगुण से अविद्या, ये दोनों, ये सब भी जरूरी है ना जीवात्मा को कवर करने के लिए। सर्ग में नहीं होती। ये अविद्या विद्या माने उस जीवात्मा की साथ में ये भी रहता है, और इसके बाद उसमें जैसा थर्ड कैंटो है ना, 12th चैप्टर में आता है ये सब, ब्रह्मा जी करते हैं ये। तो ऐसा तो जीवात्मा के साथ अपना अपना कर्म रहता है, और उससे साथ साथ मैंने ये जो मैंने कर्म भी एक प्रकार से अविद्या ही है, एक प्रकार की अविद्या ही है। वो वो भी गुणों से ही बनता है, वो भी गुणों से ही है। तो वो ब्रह्मा जी भी करते हैं, उधर स्पष्ट तो हमको याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो विद्या विद्या तो वो करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, लेकिन उसको से ऑलरेडी कवरिंग रहता है जीवात्मा, इसी को बोलते हैं बद्ध जीवात्मा, है ना। स्वभाव भी तो रहता है, स्वभाव, हाँ स्वभाव में भी अविद्या होता है। हाँ, स्वभाव में भी अविद्या होता है। अविद्या माने इग्नोरेंस, इग्नोरेंस लेयर, और विद्या माने सत्व गुण उधर। तो वही चीज की ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं, हाँ ऑलरेडी है। हाँ, ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी उसको क्या गया है, ब्रह्मा जी की सृष्टि। ब्रह्मा जी का सृष्टि में इसीलिए इंक्लूड किया गया कि उसको सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, ले लीजिए ऐसा। तो एक्चुअली जीवात्मा अनादि काल से, जो भी है हमारे आचार्यों के विचार के अनुसार तो देखेंगे तो जीवात्मा अनादि काल से परतत्व ज्ञान नहीं है, इसीलिए माया क्या करती है, उसको अविद्या से आवृत करती है। ठीक है, तो अविद्या से आवृत करके रखती है, और वो अविद्या से आवृत करके रखने के कारण ही जीवात्मा अपने आप को भूल जाती है, और उसके बाद उस जीवात्मा अपने आप को गलत समझती है अहंकार के कारण। और इधर ये ऐसा भी ले सकते हैं आप, ये सभी जिस जिस जीवात्मा के साथ कर्म है, अभी वो कारणानुसार विष्णु में इनएक्टिव रूप में है अभी, कर्म के सहित जीवात्मा, और उसको अभी अविद्या लेयर देकर, क्योंकि उसका कर्म है अभी भी, वो तो बद्ध अवस्था में ही है, तो उसको ब्रह्मा जी अविद्या बना के दे देंगे, और उसके साथ साथ तो अभी जो भी है अहंकार है, उसको लेयर भी देने से क्या होता है, वो अपने आप को शरीर समझेगा, उसी मैकेनिज्म में है। तो अनादि जीवात्मा के साथ कर्म है, माने वो एलिजिबल, वो उसको अविद्या देना है, वो काम ब्रह्मा जी बना के दे देगा। आते हैं ब्रह्मा जी का नहीं करते। नहीं नहीं, वो उनके कोई कारणानों से विष्णु से नहीं आते, वो लोग वो ऊपर से आ जाते। हाँ, वो पता है यस यस, ब्रह्मा जी का कोई गोल नहीं है। नहीं, है हाँ, वो भी कभी शरीर मिला, शादी किया, बच्चे हो गए, ये सब कैसे, ये ना, ये ऐसा है कि वो भक्ति की महिमा को छिपा के रखने के लिए ये सभी ऐसा भौतिक जगत के लिए ऐसा दिखाया जाए, नहीं तो भक्ति को माने वो व्यक्ति को तब लोग कैसा मानेंगे, एक एक इंस्पिरेशन के रूप में नहीं मानेंगे ना, वो जो ऊपर से उतर के आया और अलग ही दिख रहे हैं, तो कैसे मानेंगे। तो उनके से इंस्पिरेशन कैसे, वो शुद्ध भक्ति को सिखाने के लिए है। तो इसीलिए वो भी एक भौतिक रूप से ऐसा दिखता है ना, वो भी ऐसा शादी किया, नहीं तो वो भी, उनको भी बच्चे हो गए, उनको भी संसार है करके, तो वो केवल क्या है, तो ऐसा तो ट्रांसेंडेंटल बॉडी से, ऐसे रूप गोस्वामी और नहीं तो सनातन गोस्वामी सब ऐसे ट्रांसलेंट बॉडी से इधर ही रहे कि कोई भी खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, ऐसे ही रह सकते हैं। लेकिन भगवान भी इधर आते तो एक साधारण मनुष्य से गाय लेके जाएंगे और गोबर उठाएंगे और उस गाय को धोएंगे, ये सभी करेंगे।
तो क्योंकि तो ये नहीं तो अब लीला कैसे होगा, लीला पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं तब, तो एक अलग ही है ना। तो जैसे भगवान आएंगे तो अभी अपने नित्य रूप में आएंगे और किसी को दिखेंगे भी नहीं, तो लीला कैसे करेंगे। तो जैसे दुर्योधन इत्यादि को दिखेंगे नहीं, अपना स्वरूप को दिखाएंगे नहीं, लीला होगा तब भौतिक जगत में होगा, यानी दुर्योधन देख ही नहीं पाएगा। तो कृष्ण का रोल को कैसा कैसा भी वो निभा पाएगा। इसीलिए वो सभी एक्सटर्नली हम लोगों को एक साधारण मनुष्य जैसे शरीर ले रहे हैं और सब एक्टिविटीज कर रहा है ऐसा दिखता है। इसका कई प्रकार के रीजंस हैं। एक है तो आपको शरणागति कैसा करना है, तो मैंने कुछ भी नहीं है फिर भी मैंने भगवान पर पूर्ण विश्वास रख के इतना उम्र में और विदेश जाके प्रचार किए और भक्ति का महिमा को दिखाए, है ना। लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली एकदम स्पिरिचुअल बॉडी में आके ये सब करते तो अरे ये तो कोई भी करते हो, तो ऊपर से आए, आपको इंस्पिरेशन कुछ आएगा नहीं आएगा ना। साधारण मनुष्य क्या सोचेंगे तब, साधारण मनुष्य उनको सोच के इंस्पिरेशन कुछ लेंगे नहीं, वो तो स्पेशली पर्सन है, तो वो कुछ किया तो क्या मतलब है, वो तो पहले से किए, वो तो उसे तो हम लोग कैसा, हम लोग तो हमको भी ऐसे देह मिलेगा तब हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे, है या नहीं। तो इसीलिए वो लोग भी जब भी आते तो ऐसा एक्सटर्नली साधारण मनुष्य के रूप में दिखते हैं। जैसा अभी भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु आए तो भक्त के रूप में आए, भक्त के रूप में आके प्रचार किया। ऐसे नहीं भगवान आके डायरेक्टली आप लोग हरि नाम लीजिए तो कैसे लगेगा वो, कोई इंस्पिरेशन आता है किसी का, नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ। वो सभी चित्त में रहता है। हाँ माइंड को जनरल शब्द यूज कर ले। हाँ, ये जनरल टर्म में यूज करें। यस। सो जैसा अभी इंटेलिजेंस को अभी ये वस्तु फलाना है करके रिकॉग्नाइज करना है, तो उसका जो ये वस्तु का ये प्रिंटिंग है, जैसे पेन है, तो आंखों अभी नहीं तो की है, आंखों की को देख लिया, तो की को देखने के बाद क्या हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन आंखों पकड़ लिया, ये ले जाके माइंड को दिया, और उसके बाद माइंड ले जाके किसको दिया, तो वो चित्त में जाके, तो वो चित्त में ऑलरेडी इसकी संबंधित पुराना प्रिंट रहेगा, इस प्रकार की पदार्थ को की रहने। और इंटेलिजेंस क्या करेगा, चित्त से वो पुराना स्टोर हुआ वो पिक्चर को और इसको लेके कंपेयर करके डिसाइड करती इंटेलिजेंस ये की है करके, चित्त में स्टोर हुआ ये पुराना इंप्रेशन, तो इस वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटेलिजेंस के लिए हेल्प हो रहा है। समझ में आया नहीं है। स्टेटमेंट है तो मैं तथा ही शब्दम प्रणोमि चित्त प्रथम चित्तेन चेतना मात्र निधि होते। कहाँ और क्या फोर there is हाँ हाँ शब्दम प्रणोमि चित्त हाँ प्रथमं चित्तेन चेतना मात्र निधि होते। हाँ। पूर्ति मन जैसा अभी कोई भी साउंड आया तो चेतना, चित्तेन चेतना मात्र निधीयते, माने पहले पहले चित्त प्रवेश करके तो उसको ग्रास्प कर लेती है, कुछ तो आया, उसके बाद कान को वो चित्त प्रवेश करने के बाद कान को वो शब्द वो साउंड टच कर लिया, माने इंद्रिय की और विषय की संसर्ग हो गया, और वो इंफॉर्मेशन माइंड को पास हो गया, माइंड से वो आगे जाकर चित्त में ऑलरेडी इसके इंप्रेशन से कंपेयर होकर इंटेलिजेंस डिसाइड करते हैं ये फलाना साउंड है करके। यदि माने साधारण जैसे चित्त प्रवेश किया माने, तो चित्त का जो अवेयरनेस प्रवेश किया माने आपको वो क्या अनुभव होगा, इदम किंचित अस्ति, ये कुछ है करके अनुभव होता है। उसके बाद स्पेसिफिकली आंखों उसको, जैसा चित्त इधर से इधर क्या है फ्री एसी है, तो पहले पहले कौन जाते हैं, सबसे पहले चित्त जाता है, जाके इधर उस समय का आपको पहले पहले ये कोई भी वस्तु देखते तो पहले पहले मोमेंट में माने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चित्त जाके, और उसके बाद इदम किंचित अस्ति ऐसा ज्ञान होता है, माने वो क्या है, वो ऐसी है नहीं तो कुछ भी नहीं आइडिया रहेगा, तो कुछ है, तो इसी को बोलते हैं निर्विकल्पक ज्ञानम, उस वस्तु के संबंध में निर्विकल्पक ज्ञान। उसके बाद क्या होगा, आंखों जाके उसको को टच किया, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट स्टेप में
और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन माइंड के आंखों के द्वारा माइंड के पास पहुंच गया, और माइंड के पास पहुंचने के बाद इस ऑब्जेक्ट की संबंध में जो पुराना इंप्रेशन चित्त में है और उसको रिकलेक्ट करती है इंटेलिजेंस, और इसको नया आया हुआ इसका भी प्रिंट लेते हैं, दोनों को तुलना करते हैं, तुलना करके फलाना करके डिसाइड करते हैं, तब जाकर अभी इंटेलिजेंस उस ईगो से ऐड होकर मैं अभी मैं एसी को देख रहा हूं, ऐसा अनुभूति होता है। समझ में है? इंटेलिजेंस का डिसाइड करने से पहले माइंड कैसे निर्धारित करता है संकल्प? नहीं, माइंड तो दो काम करती है, कैरी भी करते हैं, उसके बाद संकल्प भी करते तो डिसीजन दिया नहीं इंटेलिजेंस ने। हैं। नहीं, और इसीलिए माइंड अभी क्या कर रहा है, इंप्रेशन को इंटेलिजेंस को पहुंचा दे रहे हैं, उसके बाद डिसाइड होने के बाद माइंड संकल्प करती है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप। डिसीजन के बाद से, हाँ, यस यस, डिसीजन के बाद या इंस्टेंट रिकग्निशन के बाद होता है माइंड चाहना। माइंड दो काम करती है, वो इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन को ले जाके ऊपर इंद्रियों से, सेंसेस से इंफॉर्मेशन ले जाके इंटेलिजेंस को पहुंचाती है, और संकल्प भी करती है, बीच में रहती है। संकल्प बाद में होगा, इंटेलिजेंस की डिसीजन के बाद होगा। आई एक्सेप्ट हो गया। यस, यस, विलिंग है माइंड का, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ये विलिंग संकल्प है या तो वो एक्चुअली वो जो है ना टर्म्स, जो विलिंग है संकल्प है, तो उसमें इतना बाइफरकेशन नहीं की इन सबको, तब वो जनरली बोला गया बाइफरकेट करेंगे तो चित्त का काम इंप्रेशंस को स्टोर करना, और संकल्प विकल्प का मन का है, और बुद्धि डिसाइड करना, निश्चय करना ये क्या है करके, और ईगो है अभिमान करना, ये सभी अलग अलग लोगों का काम है ये। एक बताया था आत्मा से, आत्मा में इच्छा शक्ति है, हाँ तो मन में भी इच्छा शक्ति है। हाँ, तो आत्मा में जो इच्छा शक्ति है सो वो इच्छा शक्ति इस अविद्या की द्वारा ट्रैवल होके माइंड को टच किया, तभी जाके माइंड में इच्छा शक्ति एक्टिव होता है। आत्मा में सभी पावर्स नहीं रहते हैं, एक्टिवनेस नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, तो ये सभी काम नहीं कर सकते, उसका सपोर्ट है। तो डूअरशिपनेस आत्मा में भी है, वो आके इसकी सबके पीछे खड़े हो गए, तभी जाकर ये सभी काम कर। तो जो अहंकार, जो वास्तविक अहंकार है या आत्मा जिस तरीके से आईनेस है, वही रिफ्लेक्ट होके अहंकार को एक्टिवेट कर देते हैं। हाँ हाँ, वो इन जनरली दैट सपोर्ट इज नीड, अदरवाइज वो केवल अहंकार क्या करेगी, जड़ पदार्थ अहंकार कुछ नहीं कर सकते हो। तो जी फीलिंग्स कहाँ होती है? हैं? फीलिंग तो इसलिए यदि आप माइंड से जब माइंड में फीलिंग्स है ना, तो माइंड में एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, तो इसी फीलिंग के पूरा मिला के फीलिंग ही हो रहा है ना, ये पूरा स्टेप सभी मिला दो तो वो फीलिंग है। इमोशंस है, इमोशंस का इच्छा, द्वेष, राग ये सभी भी माइंड का ही प्रॉपर्टीज है, एक टाइप्स ऑफ संकल्प विकल्प। हाँ, द्वेष माने रिजेक्ट करना, इच्छा माने चाहना। ध्यायतु विषयान् पुंसः है, हाँ, उसमें इसे भी कैसे करें? ध्यायतु विषयान् संगस्तेषु प्रियः, या असले आदि का थिंकिंग फीलिंग मिलेगा। हाँ, ध्यायतु विषयान् पुंसः परीक्षित जाएगा, हाँ, ध्यान लगा लें। या सो मैंने एक हर क्षण ये सभी माने सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो और चित्त, ये सभी इंटरेक्शन, हजारों इंटरेक्शन होता रहता है हर क्षण। आप कई चीजों को देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं लेकिन फिर भी रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, चित्त जा रहा है लेकिन सेंसेस नहीं जा रहे हैं उधर, उसके इंफॉर्मेशन ग्रास्प नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार कई प्रकार की ये एक्टिविटीज हो। अब ऐसा आपको आंखों देख रहे हैं लेकिन चित्त तो नहीं गए उस तरफ तक, तो आंखों देखते भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा अंदर। इसीलिए ऐसे कई प्रकार के एक्शंस होते हैं। चलिए ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ पूरा इंद्रियों की वृत्तियां भी बताई जाती है, इंद्रियों की वृत्ति इंद्रिय माने क्रिया शक्ति, उसमें शक्ति रहते हैं। इंद्रिया क्या कर रहे हैं, अभी एक वस्तु को देखे हैं और उसके संबंधित इंप्रेशन को ग्रास्प करने की पावर आना चाहिए इंद्रिय में। जैसे ये वस्तु को, ऐसे आंख में एक शक्ति रहती है, क्रिया शक्ति, तो इसके छवि को
खींच के ऊपर माइंड को देना है ना, ये इंद्रियों का काम। माने इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है, जो भी उसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द, उस सबका ग्रहण इंद्रिय करते हैं ना। इसको शक्ति बुद्धि से मिली। और उसको ये क्रिया शक्ति, माने वो तीन शक्ति होता है, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये क्रिया शक्ति इंद्रियों में रहती इसको बुद्धि से प्राप्त बुद्धि नहीं, का नहीं, बुद्धि का अनुग्रह है। तदपि बुद्धिया विशेष। हाँ, बुद्धि तो अनुग्रह विशेष माने वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना ये क्या है करके, विशेष। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ? नहीं, आप तो लेट आए, ऑलरेडी बोल दिए गए। हाँ क्या प्रभु, प्रभु बाद में क्लास की बात पूछी, ठीक है, क्योंकि अभी सभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और एक दो लोगों की क्लास है सर, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोग रहेंगे ना। ओके, इट्स क्लियर फॉर एवरीवन सम एक्सटेंट, कोई बात नहीं। जिसको समझ में नहीं आया तो हमको मैसेज भेजिए तो हम रिप्लाई करेंगे। ये आया क्यों, ये डिस्कशन तो इसीलिए आया कि यही पर्पट पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 12th चैप्टर, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम उधर देना पड़ेगा, कमेंट्री भी है, तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा जल्दी फिनिश करके उस चैप्टर में कम से कम आज 9 श्लोक कर सकते तो अच्छा है। तो शिव जी एक्चुअली ब्रह्मा वो चाहते हैं कि कैसा है एक्चुअली ये रूप, मोहिनी रूप कैसा रहता है करके देखने की इच्छा हो, उसी संदर्भ में काफी पॉइंट्स हैं। तो अभी कितना तक करें हम लोग, ये है प्रॉब्लम 7 है, 6 हो गया। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लो सर, हाँ जस्ट टू सेव टाइम। यस यस, 7th का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। So Bali Maharaj replied, all those present on this battlefield are certainly under the influence of eternal time, and according to their prescribed activities they are destined to receive fame, victory, defeat and death one after another। इसी का परपट पढ़ते ही हम लोग गए उधर, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो इसमें सभी मटेरियल इंटरेक्शन सब कुछ, भले आत्मा की चेतना सबके पीछे तो है, लेकिन सभी कुछ जो भी है, ग्रास्पिंग करना, उसके बाद चाहना, उसके बाद रिजेक्ट करना, उसके बाद ये है करके आइडेंटिफाई करना, ये सभी किससे हो रहा है, तो इससे चित्त से, अहंकार से, बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, इसी से हो रहा है सब। इसीलिए तो लेकिन उसके सबके पीछे तो आत्मा की चेतना खड़ा है, तो इसलिए प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। So since everyone without expectation is subjected to the modes of material nature, whether one is victorious or defeated, he is not independent, but he is under the control of material nature. So Bali Maharaj therefore was very sensible. He knew that the fighting was arranged by eternal time, and that under time's influence one must accept the results of one's own activities. Therefore, even though Indra pretended that he would now kill Bali Maharaj by releasing the thunderbolt, Bali Maharaj was not at all afraid. This is the spirit of so Kshatriya Yudde Chapya Apalayanam. Kshatriya so must be tolerant in all circumstances, especially on the battlefield. Okay, next slogan. Yes, Prabhu. So there is a whole discussion. So I just want to know the gist. First thing is that there is Prakriti, Vidyamani, Yes, yes. Prakriti is doing everything. Yes. And the soul is behind. Yes, yes. The consciousness of the soul is behind. Yeah. Of course, the soul has the desire also. Yeah. इच्छा शक्ति तो है ना उसका। इच्छा शक्ति तो है इसके पास। And second thing is just want to know. Janati ichchati yatati. These are all the properties of soul. What? Janati ichchati yatati. Knowing ability also is there. And also all these
So the main question what you asked yesterday also, who who is suffering or who is enjoying? Yes, yes, yes. What is the answer to that? Yeah. So that's why now Ichha Shakti is there in the soul. Otherwise, how all these actions can happen? So, but the point is now avidya is covering the soul. So now that's why this soul is forgetting himself as soul, and because of the material ahamkara, it is considering himself as the body. And now, which are the interactions? All the interactions happening in what? All the transformations are coming in what? Is there any transformation in the soul? No. All these are all happening in chitta, ahankara, buddhi, mind, and senses. All these only interacting, and all the that means outside objects. They also made up of modes, and these are also made up of modes, and among the modes only everything is happening. But now falsely this jivatma is thinking that I am enjoying. Well, actually, the pain and pleasure, all these things in these four things. Yes, But yes. when the attachment because of the false ego that Because of avidya, because of the covering of avidya, it is forgetting himself, and because of the false ego, it is identifying as it's himself as body, and thinking that these are all happening to his own. that's how he's enjoying and suffering. And suffering. That's why he's enjoying and suffering. Yes. Tadidam kala rasnam जगत् पश्यन्ति सूरयः न वृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम पंडिताः. Seeing the movement of the time, those who are cognizant of the real truth neither rejoice nor lament for different circumstances. Therefore, because you are brilliant due to your victory, you should be considered not very talented. Yeah. So there is a discussion, that means there are arguments between each other. Seeing the moments of time, that Balaram Maharaj is saying, those who are cognizant of real truth neither rejoice nor lament for different circumstances. Anything like in the Bhagavad Gita says, Prakriti Kriyamanani Guna Karmani Sarvashaha. So all Guneshu Vartante, Gunaha Guneshu Vartante. This is also one more place. All the modes are interacting each other, and there so many things are happening. But learned person will be so not so entering or indulging in those things, and he will be withdrawing his chetana, and he will fix his consciousness, his own self. I am soul. This is Atma Ram state. And that is the so learned person will do. So or otherwise best is, so if someone is having bhakti, then so he will be meditating on the past tense of the Lord or the something else. So like that. So here Maharaj, Bali Maharaj knew that Indra, king of heaven, was extremely powerful, certainly more powerful than he himself. Nonetheless, Bali Maharaj challenged Indra by saying that Indra was not a very learned person. In Bhagavad Gita, Krishna rebuked Arjuna by saying, Asochananva sochastum pragnavadamscha bhashashe gatasuna gatasumscha nanuk sochanti panditaha. While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. Thus, as Krishna challenged Arjuna by saying that he was not a Pandita or a learned person, Bali Maharaj also challenged King Indra and his associates. Because Indra is attached to the result. He is thinking that victory is favor, is happy. Victory gives happiness and defeat will give sorrow, like that he is thinking. But Bali Maharaj is situated in the real knowledge. And that's why he is neither happy nor so unhappy. In this material world, everything happens under the influence of time. Because time is bringing these all these interactions to happen. So there is another energy also needed. Not only the soul's chetana should be behind that, but to active all these, there is time also is needed. If there is no time element, all will be like this only. Ekdam fast. Everything is fast. So no interactions, no ups and downs. ये तीनों गुणों ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तब तो नया नया पदार्थ बनेगा ही नहीं.
जब मोड्स ऊपर नीचे जाएगा तो नया नया पदार्थ बनता है। जब सत्वगुण ऊपर जाए तो सात्विक पदार्थ बन जाता है। तो जब तमोगुण ऊपर जाएगा तो तामसिक पदार्थ बन जाते हैं। जैसा जब अन्न बनाए तो उस समय सत्वगुण अधिक रहते हैं, इसलिए वो फ्रेश रहता है। धीरे धीरे टाइम से क्या होता है, सत्वगुण डाउन जाता है और तमोगुण बढ़ता है, वो तामसिक हो जाता है। इस प्रकार सभी इंटरेक्शन मोड्स का इंटरेक्शन गुण व्यतिकरः, दूसरा नाम है काल का गुण व्यतिकरः, माने गुणों में बदलाव ले आने वाला, ये दूसरा नाम है टाइम का दूसरा नाम। So in this material world, everything happens under the influence of time. Consequently, for a person, for a learned person who sees how things are taking place, there is no question of being sorry or happy because the waves of material nature. After all, since we are being carried away by these waves, what is the meaning of being jubilant or morose? One who is fully conversant with the laws of nature is never jubilant or morose because of nature's activities. In Bhagavad Gita 2.14, so Krishna advises that one be tolerant. Titikshasva bharata. Matra spashastu kaunteya sitoshaspadakpada. Agama paino titikshasva bharata. So now this Jivatma is coming is not covered with the Avidya. Now Jivatma is covered with the Vidya. That is out of goodness. Vidya means out of goodness. Then what will happen? Jivatma identifies himself as what? As soul. Then in that case, even there are so many senses are being the objects, and also because of that, mind is grasping and identifying, and related to that, there are so many different kinds of feelings are coming. Even all these are happening, but he will be not attaching to any feeling of that. Neither sorrow or not happiness. For anything, he will be he will not be reacting. He will be situated in himself. This is the practice actually. So what is the purpose of following the dharma? So that means like Brahmana is having the Brahmana dharma, Kshatriya is having the Kshatriya dharma, Vaishya is having the Vaishya dharma. So what is the purpose of following the dharma? So one should strictly, Bhagavad Gita Krishna says, and Krishna says that to Arjuna, you should do your duty in the first 6 chapters. Why he is asking to do that? Huh? Why? The reason is, yeah, purifying the consciousness. How to purify? By doing the material dharma. That means Brahmana is doing the Brahmana work. By that, how his consciousness will be purified? Or Kshatriya is doing the Kshatriya work. That means by fighting with his relatives, he will be getting purified. How it is going to happen? Religious principle. Huh? But following the religious principle. How? How it will happen? Lord Krishna has formed some religious principle described in the Vedas, and they have been following all these type of principles. That's why they have. And the mechanism is like you see, if Kshatriya is having the Kshatriya dharma, now in front of him, so his grandfather is there. He was seeing initially compassion. What kind of compassion? Material compassion. He is thinking that he is my grandfather who made me, who brought up me so much, and who loved me so much. And that means Arjuna is identifying himself as body, and he is seeing the Bhishmadev also his body, and that person helped this body so much. So that's why he is very much favoring person. And now if any harm happens, and then it is not good for me. So this is the material compassion. Out of this, he was lamenting. So then Krishna is saying, Asochanam na sochastum pragnavadansha bhashashe gatasuna gatasuncha nanu sochanti pandita. तब उसके बाद क्या बोले हैं भगवान, अर्जुन किसके लिए रो रहे तुम? गतासुन माने जिससे प्राण चले जाते हैं, अगतासुन जिससे प्राण नहीं चले जाते। वो कौन है? सूक्ष्म देह और स्थूल देह। जिससे प्राण चले जाएगा वो कौन है? वो स्थूल देह है। जिससे प्राण नहीं चले जाते वो कौन है? वो सूक्ष्म देह। ये दोनों के लिए तुम क्यों चिंता कर रहे हैं? और उसके बाद बोले हैं तो नत्वेवाहम जातुनासम नत्वे नैवे जनाधिपा। उसके बाद और भी बोले हैं, अरे भाई आप और मैं और ये राजा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, हम सब क्या है? हम आत्मा है, और हम लोगों स्थूल देह नहीं, सूक्ष्म देह नहीं। ऐसा बोलकर तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आप अपना मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, ये स्थूल और सूक्ष्म देहों से जो भी दर्द आता है उसको सहन करना है।
वो क्यों? वो आत्मा का नहीं है, वो केवल देह का ही परिमित है। तो इसीलिए तो आप अपना फाइटिंग करो, अपना दादाजी से भी फाइटिंग करो, अपना धर्म को निभाओ, निभा के तो माने जब अपना धर्म निभाते समय तो भौतिक सुख आया दुख आया दोनों को सहन करो, दोनों को सहन करके अपना धर्म को फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद उससे जो भी फल आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, नहीं तो लाभ आएगा लाभ आएगा, उन दोनों को भी सहन करो। इससे क्या होता है? तो माने इन सभी चीजों में वो अपने आप को, इन सभी इंटरेक्शंस ये सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आत्मा की चेतना को उस तरफ नहीं जाने दे रहे। उन इंटरेक्शन से जो भी आएगा सुख आएगा दुख आएगा, और उसमें ये इंडल्ज नहीं हो रहे, मान इससे अपने आप को अलग बना के रख रहे हैं। ऐसा जीवात्मा अपने आप को अलग बना के रखना माने उधर सामने सामने मोड्स का इंटरेक्शन होते हुए भी अभी अपना दादाजी से ये फाइटिंग कर रहा है, उनको खून बह रहा, फिर भी उसको भी वो सहन करके खून बहते रह रहे हैं, तीर चलाया खून बह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना धर्म को फॉलो कर रहे हैं। मान उस समय भौतिक दुख आ रहे हैं, दुख आएगा नहीं आएगा? दादाजी को तीर लगते तो खून निकलते तो वो दुख किसके लिए आता है? बॉडी के लिए आता है। वो मन में एक पॉइंट है, वो मन का गुण है वो। तो इसीलिए ये मन का गुण है, ये मैं नहीं हूं, तो मैं माने आत्मा हूं करके वो उस चेतना में रह के उसको उस धर्म को माने उस वो शक्ति माने फाइटिंग कार्य को कंटिन्यू रखेगी, जारी रखेगी। जारी रख के ऐसा करने से क्या होता है? तब वो इस जर्नी में क्या कर रहे हैं, मैंने सुख भी आ रहे हैं, करते समय दुख भी आ रहे हैं, दोनों को सहन करते हुए अपना जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तब तो क्या होगा? तब मैं आत्मा हूं करके स्थिति पर वो खड़ा हो रहे हैं। उसके बाद उससे लाभ आया, माने उससे जय माने विक्ट्री आया, तो जीत आया तो उससे भी संतुष्ट मत हो जाओ, और हार आए तो उससे भी दुख मत हो जाओ, और उन दोनों को भी मुझे ही समर्पित कर, त्याग कर दो, मेरा ऊपर त्याग कर दो। तो ऐसा उस सुख आए दुख आए उससे भी वो इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, उसमें भी अपना चेतना उसमें भी नहीं घुसा रहे। तो उस स्थिति में क्या होगा? तब वो ऐसा करते करते पहले तो प्रयास करेगा लेकिन गिरते रहेगा, अरे मेरे दादाजी मर गया करके, नहीं तो कुछ हो गया करके रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो तो उस पर भी एकदम कार्य को ना रोक कर ऐसे स्टेडीली करने से तो क्या होगा? इससे तो अपने आप को आत्मा है करके रियलाइज कर पाएगा। धर्म का उद्देश्य क्या है? तो आत्मा है करके रियलाइज करना। यही पहले 6 चैप्टर में बोला गया, बार बार यही बोलते हैं। हाँ, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को में अभी रिजल्ट को कहाँ छोड़ दे? रिजल्ट को अभी वापस अपने पास रख लिया तो वो बंधन बन जाएगा, उसको तो कहीं ना कहीं छोड़ देना है। कहाँ छोड़ देना है? मेरे में छोड़ दो। उससे क्या होगा? युद्ध करने से जो भी पाप आएगा वो पाप भी आपको नहीं आएगा। तो मेरे में वो रिजल्ट छोड़ दो, तो तब से क्या होगा? तो सो अमृतत्वाय कल्पते, आप अमृत को पिएंगे, माने मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं करके रियलाइज कर पाएंगे। माने धर्म का उद्देश्य है आत्म माने तत्व जिज्ञास, माने धर्म को निभा के मैं आत्मा हूं करके रियलाइज कर। अभी धर्म को बहुत लोग सोचते हैं निष्काम कर्मयोग फॉलो करिए, इससे क्या होगा? आप उस कार्य को अच्छा करेंगे उससे अच्छा फल मिलेगा। ये है क्या? ये उद्देश्य है क्या? भगवान इस उद्देश्य से बोल रहे हैं क्या निष्काम कर्मयोग करने के लिए? निष्काम कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति होती है, मैंने मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं करके एक ज्ञान प्राप्त होती है। ये उद्देश्य है एक्चुअली भगवान क्यों? तो इस युद्ध करने की पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है? तो पहले पहले शुरुआत का रीजन तो मुझे तो स्वयं को आत्मा है करके रियलाइज कर। तो लेकिन उसी कार्यों को जो भी माने सारे एक व्यक्ति अपना अपना धर्म को निभाएंगे, निभा के जो भी आया फल को तो आपको आत्मा करके रियलाइज करने के लिए भगवान को त्याग बुद्धि से समर्पित करेंगे। यदि उसको प्रेम से समर्पित करेंगे भगवान को, तब तो क्या होगा? तब भक्त हो जाएंगे। समर्पण तो दोनों लोग कर रहे हैं। एक का उद्देश्य, एक पहले वाले का उद्देश्य क्या है? मोक्ष माने कर्म बंधन से मुक्ति, और सेकंड वाले का उद्देश्य क्या है?
भगवान को खुश करना, ऐसा कर्म करके उसकी फल को पूरा के पूरा भगवान की संतुष्टि के लिए दे देते हैं। इसी को बोलते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। लेकिन इससे भी जब ऊपर उठेंगे तो ये कर्म फिर मैं क्यों करूं, मैं डायरेक्ट साक्षात भक्ति करूंगा भगवान के श्रवण की। अब ऐसे 24 घंटा करने के लिए रेडी हो जाऊंगा और कुछ नहीं, ये कर्म गिर्म कोई हमारा सहारा नहीं। तो ये बोलते हैं शुद्ध भक्ति। डायरेक्ट जो लोग श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति 24 घंटा करने में असमर्थ हैं, तब उन लोगों के लिए ये काम बोला गया, जाओ तो तुम अपना अपना धर्म के अनुसार जो कर्म है करके उसका फल हमको दे दो। यत् करोषि यज्जुहोषि ददासि यत्, मैंने जो भी करेगा, जो भी जो हवन करेंगे, जो भी दान देंगे, सब हमारे लिए समर्पित। कम से कम एक रिजर्वेशन नहीं, लेकिन उससे भी ऊपर उठ के आगे तो और भी अनन्य भक्त बनना चाहिए। अनन्या चिंतयन्तो मां, तो ये जना पर्युपासन्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। A devotee carries out his duty in Krishna consciousness. In Bhagavad Gita, Titikshasva, following this advice of Krishna's, one should not be morose or unhappy because of circumstantial changes. This is a symptom of a devotee. Devotees also having the qualities of jnanis. Devotees also, they are not worried about the success or failure. But what the difference between the jnanis and the devotees? Jnanis, they are offering that result to the Lord with the detachment, with the renunciation. But devotees are offering the result of that activities to please the Krishna. This is the difference. So this is the symptom of devotee. A devotee carries out his duty in Krishna consciousness and he is never unhappy in awkward circumstances. Jnani also not unhappy, but devotee also. But devotee, Jnani's case, what? His case is he is doing everything in the self ego actually. He is trying to purify himself and he wants to climb to the Brahman relation by his own endeavors. But devotee is offering everything and he is so dependent on the Lord. And that's why Lord's support is there in the case of devotee. And in the case of the Jnani, there is no support. He is following the process. He is offering that result to the Lord out of love he is doing? No. Out of detachment he is doing. Out of feeling of renunciation he is doing that. किसी ने किसी एक जगह फेंकना है तो इधर फेंक दो, इससे पाप नहीं आएगा, ऐसा भाव है, उससे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। Therefore, a devotee never deviates from his prescribed duty of devotional service. So that means devotees also follow strictly their dharma. So that's in the society, it is said that everyone should do their dharma, even it is going to give pain or pleasure. If something is assigned to you, you have to do this. This is making us to lift our consciousness from the, that means now we are covered with the avidya. So now by strictly following our dharma, instead of covering with the avidya, we gradually be covered with the vidya. We come to the goodness. That means our covering will be changed, avidya to vidya. So that we at least come to know we are not this body. So that's why it's a basic etiquette of the society is everyone should follow their dharma. And best is offer that to the Lord with the pleasing mood, with the loving mood. That's the highest. Even top to that is do 24 hours direct devotional activities to the Lord, only for the sake of the Lord, without desiring any other thing else. Again and again you should do that because they are pleasing the Lord. That's why you will not stop doing that. So then that is the highest consciousness. So material quality is therefore a devotee never deviates from his prescribed duty of devotional service. The material qualities of jubilation and moroseness are present even in demigods who are
So very highly situated in the upper planetary system. Therefore, when one is undisturbed by so-called favorable and unfavorable circumstances of this material world, he should be understood as Brahmabhuta. That means he is in the self-realization. He is in the I am not body, I am the soul, in this consciousness. As stated in the Bhagavad Gita, Brahmabhuta prasannatma na sochati na kakshati. Dharma being associated with the bodies. Yes, dharma which is associated with the body is helping us to realize I am not body, I am soul. If you do in a right way, with the mood of so strictly doing and offering that result to the Lord, with the detachment, then one can realize I am not body, I am soul. So that is the purpose of following dharma. Dharmasya nardor dhayopakalpate. So dharmasya hekantasya nardor dhayopakalpate. Dharma's purpose is not earning money, and earning money purpose is not enjoying senses. No. So dharma's purpose is tattva jignasa. So whether one is in knowledge of one is in ignorance. So if he's following his dharma, he will be. That's the king's duty is she should make everyone to follow their dharma so that they will be in the mode of goodness at least. Otherwise, everyone will be. What is the limit of the sense gratification? If you leave them, so out of sense gratification, they are accepting the dharma, they are rejecting dharma. If they do, then how extent they can degrade, you can know. Even they can go worse than the animals. They will become worse than the animals. That is happening in the present society. Then with general masses will ask who will decide dharma. Means like for the general people, if somebody is born out of like poor families, then how it would be determined about his dharma, like it's following Shudra. Shastra is defining na dharmantu sakshat bhagavad praniti. Lord decided. Lord decided this varna and ashram dharma, and he gave this is the duties of that, and that's why this Krishna conscious movement is meant for dividing the society. Prabhupada says. So devotees will divide the society. This movement is not just limited to the one particular. Ultimately, Krishna Prema is the goal, and what are the other duties? This movement is going to do that also. So when we see like there are human species, particularly for human form of life, there is dharma. So human will elevate by following dharma. So it includes the demigods also, like there is in demigods. It's written that there is They don't. That's not karma bhumi. Only this in this Prithvi also there are the 7 dvipas. In that also Jambu dvipa, and also in the Bharatavarsha is the karma. Particularly here only you have Varnashram dharma. Varnashram dharma is not there on entire Earth planet also. They are also enjoyment. My point is they all they're meant for the enjoying their already past deeds. But Krishna is when we say bhav rise, Krishna took the pure bhav. So they are also dedicating their bhav to Krishna. Demigods also, and lower species also sometimes. So Bhakti can be done by anyone, but I am saying dharma actually. Earning karma is not possible in other species. So demigod's body is the enjoying, is purpose of enjoying. माने आनंद के लिए हो उसमें वो लोग क्या करते हैं वो जो ऑलरेडी पुण्य जो है उसको भोगते हैं उससे तो और वर्ण आश्रम धर्म वो मनुष्यों के लिए मानव धर्म है मनु के द्वारा दिया गया हम लोगों के लिए और उससे हम लोगों ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं ये और डेमिगॉड्स भक्त तो कोई भी बन सकता भक्ति के लिए कोई कंडीशंस नहीं वो डेमिगॉड प्लेनेट हो यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा so anvaya व्यतिरेकाभाव यस्यात् सर्वत्र सर्वदा in the chatushlok it comes na bhakti is existing in all the times outside brahmanda inside brahmanda in everything every species in all species it is possible to everyone it is possible according to whatever you saying, if somebody has a this feeling that I have to give it to Krishna, then he will purify. yes He will purify by this feeling that I have to give it to something higher, for some higher purpose. Renounce this thing for higher. That will purify him. yeah so giving to krishna he will definitely will purify
So here the point is following dharma. So you are asking, na? So that means demigods dharma. They are also having dharma, but that is not the point. That's a body for the enjoyment. That's the my main point. That's not karma bhumi actually. Their dharma is their rules and regulations are different. Like example, in the case of Draupadi, so she is not human being. Human being is not. That's why. So in that she is in the higher body actually. So for her, this varnashram dharma rules are not applied. So one woman, one wife. No, it's not applied for her. So that's why if you see according to dharma also, she is not the human being body. She is not having. So that's why she is allowed to marry 5 hours. In that way also, if you see. So that's why this whatever the we have Manusmriti is meant for the, and also this, if you do this action, this sin will be getting, if you do this action, you'll be getting this. This is there for the Manusmriti. According to that, we get Manavas, Varnashram Dharma. नवयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनम् गिरोह्वः साधु सोच्यानाम् गृह्णीमो मर्मताडन. You demigods think that your own selves are the cause of your attaining fame and victory. Because of your ignorance, saintly persons feel sorrow for you. Therefore, although your words afflict the heart, we don't accept them. Maharaj is speaking so wonderfully. Yes. That time also he was declared as Mahatma after the No, he is devotee at the time. this time also he is a Maharaj. Yeah. He's fighting us this Brahman side. Yes. After meeting Aman Dev he lost. No, he has meeting. He met the Prahlad Maharaj. Na? He got the association of Prahlad. Yes. Sri Sukha Uvacha Idyavikshipya Vibhum Viro Na Nacharai Veeramarjana Akarna Purnairahana Akshepairahatam Punaha. Sukadeva Goswami said, after thus rebuking Indra, king of heaven, with sharp words, Bali Maharaj, who could subdue any other hero, drew back to his ear the arrows known as Narachas and attacked Indra with these arrows. Then he again chastised Indra with strong words. अपना तीर को रेडी रख दिया ऐसा बलि महाराज. तो इतना में क्या हुआ? एवं निराकृतो देवो वैरिण तत्यवादिन नामृष्यत् तदधिक्षेपम् तो तोत्राहत इव द्विपः. Since Maharaj Bali's rebukes were truthful, King Indra didn't at all become sorry. उनको कोई परवाह नहीं एक्चुअली इंद्र का. इतना अच्छा अच्छा बोल दिए बलि महाराज, फिर भी इंद्र उसको ध्यान नहीं दिया. कैसा? Just as an elephant beaten by its driver's rod doesn't become agitated. ऐसे एकदम हाथी को एक रॉड से ऐसे को नहीं भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं थे. जैसे भैंस में बारिश हुआ ऐसा. तो बोलते हैं ना. तो इंद्र को कोई भी माने उस वादों का, उनको एक ही इच्छा है अभी कैसे न कैसे युद्ध जीतना है और राज्य को वापस लेना है. इनका यही है. तो प्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम परमर्दनः सयानो न्यपतद् भूमौ
छिन्न पक्ष इवाचलः. Can anyone read translation? When Indra, the repeater of enemies, released his infallible thunderbolt, captured as Bali Maharaj with a desire to kill him. Bali Maharaj fell into the ground with his airplane like a mountain with its wings cut off. हाँ, तो बलि महाराज तीर चलाना चाहते, इतना में क्या किया? When Indra, the defeater of enemies, released his infallible thunderbolt, छोड़ दिया ये तो. इंद्र तो अपना थंडरबोल्ट माने जो वज्रायुध है उसको छोड़ दिया. वो तो ये बलि महाराज तीर चलाने के लिए सोच रहे थे, इतना में थंडरबोल्ट डाली थी. क्या हुआ तो तब scepter at Bali Maharaj with a desire to kill him. Bali Maharaj indeed fell to the ground with his airplane. गिर गए बलि महाराज like a mountain with its wings cut off. पहले पहले माउंटेन्स को विंग्स भी रहता था, वो बड़ा बड़ा माउंटेन ऐसा हवा में चलता रहता था, और जीवित माउंटेन भी रहते हैं, उसका पंखा भी रहते हैं, अभी वो गायब हो गए. In many descriptions in Vedic literature, it is found that mountains also fly in the sky with wings. When such mountains are dead, they fall to the ground, where they stay as very large dead bodies. ऐसा भी पता नहीं कौन सा जीवित था, पहले पंखा था, लेकिन अभी गिर के उधर ही रह गया. So माउंटेन में भी प्राण रहती है, और पत्थरों में भी प्राण रहता है, जीवित शिला रहता है, उससे ही भगवान की विग्रह बनता है. हर पत्थर में नहीं होता है, कुछ पत्थरों में होता है प्राण. जैसा जिससे प्राण चले गया और उसमें उसको जो सिकुड़ गया, वो सब्जी से हम लोग सब्जी नहीं बनाते ना, वैसा ही इसमें प्राण है, उसी शिला से भगवान की विग्रह बनाया जाता है. वो शिल्पकार है ना, वो तो जानते हैं, शिल्पकार का पता चलता. सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलिसकः सुहृत् अभ्यवसहृदं सख्युर् हतस्यापि समाचरन्. When the demons Jambasura saw that his friend Bali had fallen, he appeared before Indra, the enemy, just to serve Bali Maharaj with friendly behavior. जम्बासुर देख लिया, his friend fallen, and he appeared before Indra, the enemy, just to serve Bali Maharaj with friendly behavior. जम्बासुर आ गया अभी उधर, तो इसको बलि महाराज को गिराना देखते हुए, तो क्या हुआ? ससिंहवाह आसाद्य गदाम् उद्यम्य रंहसा जत्रावातान् यच्चक्रम् गजं च सुमहाबलः. The greatly powerful Jambasura, carried by a lion, approached Indra and forcefully struck him on the shoulder with his club. He also struck Indra's elephant. दे लिया. तो जम्बासुर अपना गदा से एक दिया इंद्र के ऊपर, और उससे साथ साथ ऐरावत को. तो क्या हुआ? गदा प्रहार अव्यथितो वृषं विह्वलितो गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ. Being beaten by Jambasura's club, Indra's elephant was confused and aggrieved. Thus, it touched its knees to the ground and fell unconscious. ऐरावत गिर गया. So, जो जम्बासुर ने जो दिया तो गदा से, उससे क्या हुआ? अभी ये अनकॉन्शियस हो गया ऐरावत इंद्र का. ततो रथो मातलिना
हरिभिर्दशशतैर्वृतः आनीतो द्वीपमुत्सृज्य रथामारुरुहे विभुः. Thereafter, Matali, Indra's chariot driver, brought Indra's chariot, which was drawn by 1,000 horses. Indra then left his elephant and got onto the chariot. Matali Indra का chariot का driver है. Indra's chariot is driven by 1,000 horses. And now Airavati fell down, so that's why he unconscious. It became unconscious. So he jumped into that chariot. तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवत् सत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु सेयमानो हनन् मृधे. So appreciating Matali's service, Jambasura, the best of the demons, smiled. तो अच्छा अपना स्वामी के समय पर आ गए आप, ऐसा करके ये जम्बासुर हंसने लगा. तो nonetheless he struck Matali in the battle with a trident of blazing fire. जम्बासुर एक त्रिशूल छोड़ दिया मातली के ऊपर. सेहेरुजाम सुदुर्मर्शाम सत्वाम आलम्ब्य मातलिः इंद्रो जम्बस्य संक्रुद्धो वज्रेणापहरच्छिरः. Although the pain was extremely severe, Matali tolerated it with great patience. Indra, however, became extremely angry at Jambasura. He struck Jambasura with his thunderbolt and thus severed his head from his body. Jambasura out. Jambam srutva hatam tasya ज्ञातयो नारदादृशेः नमुचिश्च बलः पाकस्त्र आपेतु स्वत्वरान्विताः. So then Narada Muni, Narada Rishi, informed Jambasura's friend and relatives that Jambasura had been killed. So Narada Muni is compassionate towards the all demons and demigods. He is very much compassionate. Now Jambasura is killed and that's why he went to the Asuras and informed to the Jambasura's relatives. Your Jambasura gone now, Indra killed, so you do something. So that Narada Muni also make the balance of Rajas and Tamas and Sattva. If Devatas are become too much, then so he will help the Asuras. And Asuras are going up and then they will help Devatas. So that all the time everything is in the balance. So it's a duty of the Lord. Last duty he also do. So relatives that Jambasura had been killed. The three demons named Namuchi, Bala and Paka arrived on the battlefield in a great haste. Next. Vachobi Purushairindram Ardayantosya Marmasu Sharaira Avakiran Megha Dhara Viriva Parvatam. Rebuking Indra with harsh, cruel words that were piercing to the heart, these demons showered him with arrows, just as torrents of rain wash a great mountain. और सब तीनों आके इतना तीर चला रहा है कि वो एकदम बारिश की जैसा है. हरिंददशतान्याजो हर्यश्वस्य बलशरैः तावद्विरर्दयामास युगपल्लघु हस्तवान्. So quickly handling the situation on the battlefield,
the demon Bala put all of Indra's 1000 horses into tribulation by simultaneously piercing them all with an equal number of arrows. 1000 तीर चला के सभी 1000 घोड़ा को खत्म कर दिया. शताभ्यां मातलिम्पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत् संधान मोक्षेण तदद्भुतमद्भुतरणे तदद्भुतमभूतरणे. So Paka and other demon attacked both the both the chariot with all its paraphernalia and the chariot driver Matali by fitting 200 arrows to his bow and releasing them all simultaneously. This was indeed a wonderful act on the battlefield. नमुचि पंचदशभिः स्वर्णपुङ्कै महेशुभिः आहत्य वेदनत्सङ्ख्ये सतो या युवतो यदः. Then Namuchi, another demon, attacked Indra and injured him with 15 very powerful golden feathered arrows, which roared like a cloud full of water. जब वो हवा में चल रहा है इतना साउंड करते गया वो तीर एकदम. सर्वतः शरकूटेन चक्रम सरथ सारथिं छादयामासुराः प्रागुष्ट सूर्यमिवाम्बुदाः. Other demons covered Indra along with his chariot and chariot driver with incessant showers of arrows, just as clouds cover the sun in the rainy season. सब लोग घेर दिया अभी इंद्र को और उनकी chariot driver को. तो आलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रुषुर् देवगणा सहानुगाः अनायका शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पता भिन्ननभो यथार्णवे. The demigods, being severely oppressed by their enemies and being unable to see Indra on the battlefield, were very anxious. Having no captain or leader, they began lamenting like a traders in a bricked vessel in the midst of a ocean. मैंने अभी तो इंद्र को पूरा ये सभी आसुर तो कवर कर दिया, तो इतना तीरों से सब लोग मिलके इनका और चैरियट को तब तो ये दिख नहीं रहे. तब से बाकी सभी जो भी हैं सो देवताओं के सोल्जर्स, अरे कहाँ है हमारा नायक, हमारा लीडर कहाँ है करके ये दिख नहीं रहे करके माने वो लोग एकदम चिंतित हो गए. From this statement, it appears that in the upper planetary system there is a shipping and the traders they engage in navigation as their occupational duty. Sometimes on this planet, these traders are shipwrecked in the middle of the ocean. It appears that even in the upper planetary system, such calamities occasionally take place. The upper planetary system in the creation of the Lord is certainly not vacant or devoid of living entities. प्रभुपाद का मेन उद्देश्य है कि केवल जीवात्मा इधर ही है, तो इधर हम लोग जो देख रहे हैं और अपर प्लैनेटरी सिस्टम में कुछ नहीं है ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसको खंडन कर रहे हैं. तो शास्त्र के अनुसार सभी प्लैनेट्स में इन एवरी प्लैनेट देयर आर द लिविंग एंटिटीज. Even in the fire, even in the sun, there are the living entities. From Srimad Bhagavatam, we understand that every planet is full of living entities, just as Earth is. There is no reason to accept that on other planetary systems there are no living beings. Next, Tatasturasha
ततस्तुराषाढिषु बद्ध पंचराद विनिर्गत सास्वरताध्वजाग्रणीः बभौ दिशस्खं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये. So thereafter Indra released himself from the cage of the network of arrows, appearing with his chariot, flag, horses and chariot driver, and thus pleasing the sky, the earth and all directions. He shone effulgently like the sun at the end of night. Indra was bright and beautiful in the vision of everyone. तो उसके बाद इंद्र अपने आप को उन सभी तीनों असुरों से बाहर निकाल पाए, तो तब उनको देख के सभी लोगों को, तो हमारे देवताओं की जो भी सैनिक हैं उन लोगों को बहुत आनंद आया। और वो इंद्र कैसे दिख रहा है? एक सूर्य की जैसे दिख रहा है। निरीक्ष पृतनाम देवः पैरर पैरर्प्यर्थिताम्रणे परैरर्प्यर्थिताम्रणे उदयञ्च रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा. When Indra, who is known as Vajradhara, the carrier of the thunderbolt, saw his own soldiers so oppressed by the enemies on the battlefield, he became very angry. Thus he took up his thunderbolt to kill the enemies. Satenaivaštadharena Sirasi Balapakayoh Jnadinam Pashyatam Rajan Jahara Janayan Bhayam. O King Parikshit, King Indra used his thunderbolt to cut off the heads of both Bala and Paka in the presence of all their relatives and followers. In this way, he created a very fearful atmosphere on the battlefield. तो 2 मिनट ब्रेक देना है क्या? 5 मिनट ऐसा कुछ बोले है ना? What to? Yes, you can take. You can take your break. Yeah. 5 to 1 इसकी जाओगे ना? 7 5 to 1. कितना करेंगे? Just 5 minute break. 8:20 में आ जाएंगे.